हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर विल। आज हम काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आरआरबी जेई टारगेट बैच 2024। मैं योगेश कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सो द सब्जेक्ट इज बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, including the basic concepts of the concrete technology, including the basic concepts of the concrete technology. And it's my assurance to you people, concrete technology concepts are not being covered in most of the coachings, but here you will learn about the various important concepts of the concrete technology also. So मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया सब्जेक्ट, दैट इज बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, including the basic concepts of the concrete technology, including the basic concepts of the concrete technology. Okay, so my dear students, this is our subject. So बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में एवरीबडी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उत्कर्ष बेटा। हम लोगों का नाम सजेस्ट कर रहा है कि कैसे कौन कौन से आपके बिल्डिंग के रॉ मटेरियल्स होंगे एंड हाउ द कंस्ट्रक्शन इज बीइंग डन। फॉर एग्जांपल द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिक masonry or the brick masonry, how the brick masonry is being done, how the stone masonry is being done, what is basically confined structures, what is unconfined structures, we will study here. Framed structures we will also study. So if I am talking about the syllabus content as well as the weightage of the subject, as well as the weightage of the subjects and the references from where I will teach you the subject, हम लोग पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो अगर बेटा आप रेफरेंसेस की बात करेंगे तो नंबर 1 रेफरेंस इज द बिल्डिंग मटेरियल्स by गुरुचरण सिंह, by KR अरोरा। building materials by KR अरोरा and various IS codes I am following, various IS codes, example IS code number 269, IS code number 383,
IS कोड नंबर 1077 एक्स्ट्रा, है ना। ये IS कोड्स वी विल फॉलो, है ना। कौन सा कोड किसके लिए यूज होगा वो सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, सो बेटा अगर मैं बात करूं आपसे इसके सिलेबस कंटेंट की या फिर पहले इसकी वेटेज की, इन द यस्टरडेज क्लास दैट इज इंट्रोडक्शन और लॉन्चिंग ऑफ द बैच आरआरबी जेई टारगेट 2024, उसमें मैंने जनरल वेटेजेस बताए हैं। अगर हम लोग इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, अगर इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट की वेटेज की बात करेंगे, if I am talking about the weightage of this particular subject, so my dear students, if I am talking about the SSC JEE point of view, that is the pre-point, that is the objective point of view, its weightage is approximately 25%, or you can say the 22%. Approximately 22% means approximately 22 questions out of 100 technical questions generally comes from this particular subjects, from the previous year analysis, previous year's examinations analysis. In general, the approximately weightage is 22%. However, if I am talking about the mains examination, SSC JEE mains examination, that is conventional type of the examination, likhit type of the examination. So my dear students, in that particular subject, you can expect approximately 35 marks questions out of 300 technical marks. Out of 300 technical marks, if I am talking about the SSC JEE means. If I am talking about from RRB JEE point of view, that is CBT2, that is CBT2 RRB JEE point of view, so you can follow approximately the same pattern as that of the SSC JEE, the pre-examination point of view, आप वही पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। However, in general, the weightage is approximately 10 to 12 marks out of 100 technical marks. Out of 100 technical marks. तो ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट को इस तरीके से डील किया ही नहीं जाएगा कि आपको उसमें कोई पार्शियलिटी महसूस हो कि भाई ये आपका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। जल्दी से नोट कीजिए, फिर अपन सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। इतना जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग अपना सब्जेक्ट जो है वो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, है ना। कल की क्लास का सेम टाइमिंग रहेगा 7 o'clock to 8:30 और इट माइट गोज अप टू 9 o'clock ऑल्सो। ओके, आइए। सो बेटा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेबस कंटेंट ऑफ दिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट,
Okay, so let us describe the syllabus content. पहला चैप्टर हमारा होगा अबाउट द डिस्कशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट कैसे बनती है, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट रहेंगे, उनमें से प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन होगा, सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन होगा, एंड एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द सीमेंट, different types of the cement we will also discuss, likewise the Portland pozzolana cement, likewise the ordinary Portland cement, likewise the white cement, likewise the sulfate super sulfated cement. So various kinds of the cements are there. Okay, we will discuss one by one. उन सीमेंट्स का यूज क्या क्या रहेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या क्या रहेंगी, सीमेंट को बेसिकली आपका स्टोर कैसे किया जाता है, फिर सीमेंट की टेस्टिंग डिस्कस करेंगे कि उसमें साउंडनेस टेस्ट क्या होगा, सीव एनालिसिस तो नहीं करवाएंगे तो, लेकिन उसका बेसिकली हम लोग जैसे कि साउंडनेस में ली चैटलियर एपरेटस यूज करेंगे, या फिर हम लोग उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करवाएंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्यूब्स भरे जाएंगे, वाइब्रेशन टेबल होगी, पोकिंग रोड होगी, पोकिंग रोड का डायमीटर कितना रहेगा, एट एक्स्ट्रा वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेबस कंटेंट, फर्स्ट चैप्टर विल बी सीमेंट। ओके, नाउ फॉर मेकिंग ए कंक्रीट, अगर आपको कंक्रीट बनाना है, हम उसी की बात कर रहे हैं या फिर रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की बात कर लो, वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट, सैंड, यू कैन से द फाइन एग्रीगेट्स, you can say the fine aggregates, and the aggregates only word लिखा जाता है aggregates, so these are the coarse aggregates, coarse aggregates. Okay, हाँ जी. So my dear students, along with this, reinforcement will also be there. Reinforcement will also be there. So we will produce various types of the lean concretes used in basically PCC, the plain cement concrete, massive structures, likewise the dams, waterlogged areas, etc. If I am talking about here, the ratio is approximately 1:3:6. A mortar or a mix having its characteristic strength, जो न्यूमेरिकल वर्ड होगा, that will denote the characteristic strength in megapascal, that will denote the characteristic strength in megapascal. ओके, सो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा आरसीसी होता है वहां पर C/S/A का रेशो दिखाया जाता है 1:3:6, 1:4:8, 1:5:10, 1:4:8, 1:5:10. Okay. After that, some rich mixes, likewise M15 DLC में यूज होता है, 1:4 is there.
used in DLC, that is the dry lean concrete, that is the subgrade layer or the basically subgrade layer in the case of the rigid pavements. 1:2:4, M20, 1:1.5:3, M25, 1:1:2. So my dear students, these grades are basically the nominal mixes. These grades are the nominal mixes. Grades above then M25 grades. Example, if I am talking about the M30, M40, 50 तो यूज नहीं होता जनरली, 60 एंड M80, इनके प्रोपोर्शन, इनमें क्या क्या मटेरियल रहेगा, एवरीथिंग विल बी डिजाइंड. So my dear students, these mixes are called as the design mixes. Their design is done as per IS code number 10,262, latest amended in the year of 2015. 2015 में लेटेस्ट अमेंडेड है, 2015 में लेटेस्ट आपका अमेंडेड है. ओके, सो अगर मैं बात करूं, चाहे मेरा डिजाइन मिक्स हो, चाहे मेरा नॉमिनल मिक्स हो, अगर हमें उसको प्रोवाइड करवाना है तो वी हैव टू और वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट, सैंड एंड the coarse aggregates. Cement, sand and coarse aggregate. Cement will work as a binding property or you can say the binding material. पूरे कंक्रीट को जोड़ के रखने वाला मटेरियल कौन है बेटा? सीमेंट है. In the previous days, instead of the cement, the material used were likewise the lime, लाइकवाइज द सुर्खी. सुर्खी क्या होता था? कुछ भी नहीं है, जो ईंट है उसके चूने को सुर्खी बोलते हैं. पाउडर फॉर्म ऑफ द ब्रिक्स, बैटकोबा, इज बेसिकली कॉल्ड एज द, यू कैन से, सुर्खी. तो सुर्खी भी यूज करते थे पहले जमानों में उसको जोड़ने के लिए. आपने अगर बात करेंगे, अगर रूरल एरिया की बात करेंगे तो अभी के जमाने में तो नहीं बात बोल सकते, लेकिन आज से अगर 20 इयर्स पहले की बात करेंगे तो हम लोग कच्ची मिट्टी के अंदर भी आपका चिनाई करते थे, है ना. तो इन जनरल अगर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं बेटा कि बाइंडिंग मटेरियल हमारा कोई भी हो सकता है. इट मे बी ए क्ले, इट मे बी लाइम, इट मे बी सुर्खी, इट मे बी सीमेंट एट एक्स्ट्रा. ओके, सो ये हमारे हो गए बाइंडिंग मटेरियल्स. लाइम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? स्लेक्ड लाइम क्या है, हाइड्रेटेड लाइम क्या है ना. तो इन सभी की प्रॉपर्टीज, कैसे लाइम के लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होगा, कितना पानी की रिक्वायरमेंट होगी, एट एक्स्ट्रा वी विल डिस्कस इन लाइम चैप्टर. ओके, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइम एज वेल एज द testing is not so much required, but their proportions at extra is also, is compulsory. Okay, so if I am talking about our third chapter, हमने सीमेंट पढ़ा. एग्रीगेट्स में भी द फाइन एग्रीगेट्स एंड द कोर्स एग्रीगेट्स आपके सामने दिखा रहे हैं. तो वी ऑल्सो हैव टू स्टडी अबाउट द एग्रीगेट्स. बिल्कुल सही बात है.
तो भैया हम लोगों को एग्रीगेट्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। जो फाइन एग्रीगेट्स होंगे, सैंड होगी, that is basically of the two types. One is called as the coarse sand, जो कि हम लोगों की बेसिकली सीमेंट मोर्टार बनाने के काम आती है या फिर ब्रिक मैसनरी में भी काम आती है। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द मैसनरी सैंड। Second one is called as the masonry sand. However, if I am talking about the coarse aggregates, so coarse aggregates will be of likewise 10 mm aggregates, 20 mm aggregates, 40 mm aggregates, 55 mm aggregates at extra. So these aggregates are the coarse aggregates. 40 mm aggregates are basically being used in the DLC, that is the dry lean concrete. However, 55 mm aggregates are the basically ballast for the railway track. 55 mm aggregates are the ballast for the railway track. ओके, हाँ जी। तो अगर मैं जनरली बात बोलूं 10-20 mm एग्रीगेट्स की, छोटी गिट्टी और मोटी गिट्टी, तो इन जनरल जो ये 10 mm और 20 mm एग्रीगेट्स हैं, ये सभी एग्रीगेट्स हमारे काम आते हैं आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीमेंट मोर्टार्स एंड द मटेरियल्स। ओके, नाउ ये हमारा था जी तीसरा चैप्टर। एग्रीगेट्स में वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्रीगेट्स, हाउ द sieve analysis is being performed, how the sieve analysis is being performed for the aggregates, and also we will study about the various tests on the aggregates, likewise the crushing test, likewise the abrasion test, likewise the attrition test at extra, Devil abrasion test, Dory attrition test at extra we will discuss, Los Angeles abrasion test we will discuss, what is the soundness test, what is the crushing test, what is the hardness test, what is the specific gravity test, what is the water absorption test. So we will discuss all kinds of the tests in this particular chapter. Okay, now फोर्थ चैप्टर हमारा होगा, अब हमारा हमने रॉ मटेरियल्स को पढ़ा, सीमेंट को पढ़ा, सैंड को पढ़ा, लाइम को पढ़ा, एग्रीगेट्स को पढ़ा। फोर्थ चैप्टर हमारा टाइम आ गया है, हमें मोर्टार प्रिपेयर करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रिपेयर द मोर्टार, वी हैव टू प्रिपेयर द मोर्टार और यू कैन से द सीमेंट मोर्टार। तो आरसीसी में जो मेरा सीमेंट कंक्रीट बना है वो भी मोर्टार की फॉर्म है, और यहां पर जो मेरा बेसिकली सीमेंट मोर्टार, जो नॉर्मल चिनाई के लिए जो मेरा मोर्टार बनेगा वो भी मेरा सीमेंट मोर्टार है ना। आरसीसी में हम लोग बेसिकली रेनफोर्समेंट भी यूज कर लेते हैं, सो जो मोर्टार होगा, सीमेंट मोर्टार जो होगा, सीमेंट कंक्रीट जो होगा, हाउ इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, तो हम लोग जनरली इसको सीमेंट इज टू सैंड, बिकॉज नो
aggregates, no, coarse aggregates are being used. Example is for the plaster. Example for plastering, 1:5 or 1:6 ratio is there. तो भैया चढ़ाई के लिए मान लीजिए 1:6 है, तो सीमेंट मोर्टार आपका कहीं पर भी यूज हो सकता है। क्लियर है? नाउ 5th चैप्टर देखिएगा, जब आपकी एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है तो ऐसा तो है नहीं कि बैचिंग प्लांट बिल्कुल कंस्ट्रक्शन साइट के नजदीक हो सकता है। कई बार होता है कि आपका कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर ही बैचिंग प्लांट होता है। कई बार हमें कंक्रीट आउटसाइड बैचिंग प्लांट से, आउटसोर्स से मंगाना पड़ता है, बाहर की सप्लाई से, अप्रूव्ड वेंडर से मंगाना पड़ता है। या फिर अगर अपना बैचिंग प्लांट है, खुद कॉन्ट्रैक्टर का बैचिंग प्लांट है, मान लीजिए कोई क्लाइंट है, क्लाइंट ने ऑब्वियस बात है काम दिया तो कॉन्ट्रैक्टर को दिए, कॉन्ट्रैक्टर का अपना बैचिंग प्लांट है, मान लीजिए आपका जो लेबर कैंप है वो दूर है कॉन्ट्रैक्टर का, तो जो कॉन्ट्रैक्टर का जो बैचिंग प्लांट है मान लीजिए वो लेबर कैंप से भी आगे है, तो उस केस में हो सकता है कि रास्ते में जाम लग जाए, ट्रैफिक जैम हो सकता है, गाड़ी खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो सेटिंग टाइम, सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है वो बेसिकली इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट में सेटल होने लग जाती है। हाउएवर द फाइनल सेटिंग टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 600 मिनट्स और 10 आवर्स। इन जनरल बात कर रहे हैं। कल को आप ये बोल दोगे सर जब आपने बोला था स्टार्टिंग में कि 10 घंटे होता है, अब तो आप 1 घंटा भी बोल रहे हो कि फाइनल सेटिंग टाइम 1 घंटा भी होता है, कुछ सीमेंट के लिए होता है। तो जल्दी सेट ना हो सीमेंट, उसकी वर्केबिलिटी बनी रहे, तो उस चीज के लिए वी हैव टू एड सम एडमिक्सचर्स, सम सुपर प्लास्टिसाइजर्स, सम एक्सेलरेटर्स, सम रिटार्डर्स। एक्सेलरेटर का मतलब जो सेटिंग टाइम को बढ़ा दे, रिटार्डर्स का मतलब जो सेटिंग टाइम को कम कर दे। So my dear students, super plasticizers are the admixtures or the chemicals basically supplied by 2 companies in India. One is Fosroc and one is Sika. In general ये 2 कंपनी सप्लाई करती हैं, बाकी तो ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनी सप्लाई नहीं करती है, बट ज्यादा इनका चलता है। तो फोसरोक एंड सिक्का एडमिक्सचर्स सप्लाई करती हैं। उन एडमिक्सचर्स का इंपॉर्टेंट रोल जो रहता है वो सेटिंग टाइम को बढ़ाना या घटाना रहता है, सच दैट कंक्रीट डू नॉट सेट, कंक्रीट आपका सेट जल्दी से ना हो। तो बेटा उसके लिए आपकी जो डोज रहती है वो रहती है लगभग 0.55% से लेकर के और 1 से 2% ऑफ द सीमेंटीसियस कंपाउंड्स, ऑफ द सीमेंटीसियस कंपाउंड्स। तो जो ये एडमिक्सचर्स हम लोगों को पढ़ने हैं यहां पर, एडमिक्सचर्स approximately dose is 0.5 to 1.5% of cementitious material. मान लीजिए 1 क्यूबिक मीटर में मान लीजिए आपकी सीमेंट 400 किलोग्राम लग रही है, तो 400 किलोग्राम का 0.55% और 0.5% मतलब कहने का कि आपका लगभग 2 लीटर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के अंदर एडमिक्सचर मिलाया जाएगा, वो उसको सेट नहीं होने देगा। एडमिक्सचर्स का इंपॉर्टेंट रोल यही रहता है ना। क्या क्या किस किस प्रकार के एडमिक्सचर्स होते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। इन जनरल admixture is supplied by in India by 2 companies.
one is Fosroc and one is Sika. Okay, Sika and Fosroc are the two companies basically which supplies the admixtures, which supply the ready mix concretes, likewise the GP2 grout, likewise the you can say HS extra. तो ये सारी चीजें आपकी जनरल आपकी होती हैं। क्लियर? हाँ जी, आपका एडमिक्सचर आ गया, रॉ मटेरियल्स आ गए, वाटर सीमेंट रेशियो। इन जनरल वाटर सीमेंट रेशियो, पानी का अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू द सीमेंट is approximately 0.40, 0.38 to 0.40, may go up to 0.50, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। वाटर सीमेंट रेशियो, पानी कितना मिलाना है, बट जनरली 0.40 इज फॉर द ड्राई कंडीशंस। फॉर द विंटर सीजन्स 0.35, 0.36, 38 तक रहता है। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं, एक फ्लोरिंग होती है आईपीएस फ्लोरिंग, इंडियन पेटेंट स्टोन फ्लोरिंग, एक फ्लोरिंग होती है ट्रीमिक्स फ्लोरिंग, और यू कैन से द वीडीएफ, वैक्यूम डी वाटर्ड फ्लोरिंग, वैक्यूम डी वाटर्ड फ्लोरिंग यूजिंग द सक्शन प्रेशर, यूजिंग ए मैट, उसका वाटर सक कर लिया जाता है सच दैट की स्ट्रेंथ उतनी ही रहे, स्ट्रेंथ आपकी उतनी ही रहे। तो पानी को सक किया जाता है फ्रॉम द कंक्रीट, फ्रॉम द कंक्रीट, वीडीएफ बोला जाता है, वैक्यूम डी वाटर्ड फ्लोरिंग। तो फॉर द वैक्यूम डी वाटर्ड फ्लोरिंग, आफ्टर सकिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द कंक्रीट, फ्रॉम द वीडीएफ, इनिशियली water cement ratio was 0.40. After sucking of the water from the concrete, from the floor, approximately water cement ratio remains in the range of 0.35 to 0.36. ये एक जनरल रेंज आपका रहता है। क्लियर? हाँ जी। तो बेटा आपने रॉ मटेरियल पढ़ा, रॉ मटेरियल के साथ साथ एडमिक्सचर्स यू हैव डिस्कस्ड। So it's time to prepare at the concrete. हम लोगों को कंक्रीट प्रिपेयर करना है। We have to prepare the concrete. It may be the plain cement concrete, it may be the reinforced cement concrete, it may be the pre-stressed concrete, it may be the plum concrete, कुछ भी हो सकता है आपका, है ना? Sometimes PCC is also called as the plum concrete. Sometimes PCC is also called as the plum concrete. Okay, sometimes it is also called as the plum concrete. So my dear students, in the concrete, how the concrete is being made, what are the different tests, likewise to determine the compressive strength of the concrete, how many number of the cubes, how many cubes have to be filled for testing of the concrete, what is the frequency of the testing, and if the compressive strength does not meet, तो how we have to check, और बेसिकली उसके ऊपर एक टेस्टिंग की जाती है। दैट टेस्टिंग इज कॉल्ड एज द एनडीटी टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। Likewise, using the basically, if this is a basically wall, RCC wall is there, shear wall is there, तो इसमें से कोर कट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक कोर कट किया जाएगा। कोर कटर मेथड हो गया, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड हो गया, यूपीवी मेथड, रीबाउंड हैमर टेस्ट मेथड हो गया। तो बहुत प्रकार के टेस्ट आपके फॉलो किए जाते हैं फॉर द यू कैन से एनडीटी टेस्ट। क्या फ्रीक्वेंसी होगी, क्या उसके रिजल्ट्स में वेरिएशंस अलाउएबल होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कंक्रीट में। अब यहां तक चैप्टर नंबर 6 तक काम खत्म हो जाता है जी इन रॉ मटेरियल्स का। अब हम बात करते हैं, आपने
अपने स्ट्रक्चर में कंक्रीट वर्क पूरा कर लिया, एक फ्रेम बना लिया. नाउ इट्स टाइम टू fill the gap between the columns, fill the gap between the beams from the, you can say the roof beam and the, you can say plinth beam. इनके बीच में गैप अगर भरेंगे, so you have to use the either brick masonry or the stone masonry. So we have to study about the bricks also. 7th chapter will be the bricks एंड ब्रिक मैसनरी. है ना. ईंट जो होंगी उनके ऊपर एफ्लोरोसेंस टेस्ट कैसे किया जाएगा, ईंट के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होंगे, एफ्लोरोसेंस टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वेट कितना होना चाहिए, लेंथ कैसे टेस्ट करेंगे, विड्थ कैसे टेस्ट करेंगे, थिकनेस कैसे टेस्ट करेंगे, क्या मॉड्यूलर ब्रिक्स होती हैं, क्या ट्रेडिशनल ब्रिक्स होती हैं, है ना, क्या फ्रॉग मार्क होता है, फ्रॉग मार्क का फंक्शन क्या होता है, ईंटों की टेस्टिंग हो गई. उसके बाद डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका फंक्शंस क्या क्या होता है, फंक्शन ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्रिक्स, फंक्शन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्रिक्स. ओके, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वीन क्लोजर क्या होता है, किंग क्लोजर क्या होता है, 3/4 बेट क्या होता है, हाफ बेट क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड क्या रहेगा, है ना. तो ये सारी चीजें हम लोगों को ब्रिक मैसनरी के अंदर डिस्कस करनी है. ब्रिक मैसनरी के लिए आपका एक क्यूबिक मीटर में हाउ मेनी नंबर ऑफ द ब्रिक्स आर यूज्ड, ये सारी चीजें वी हैव टू कैलकुलेट एंड वी हैव टू डिस्कस. 8th chapter, in the previous days and in today also, in Rajasthan periphery, in Gujarat periphery, construction is also being done using the stones. Instead of the bricks, construction is also being done using the stones. So the stone masonry will be followed for the construction of the stone masonry. So stones की कैसे क्वेरिंग ऑफ द स्टोन होगी, कैसे ड्रेसिंग ऑफ द स्टोन्स होंगी. So for the querying of the stones we have to study about the different types of the rocks. Likewise the igneous rocks, the metamorphic rocks, the sedimentary rocks, उनके बेसिकली सोर्स क्या है स्टोन का, दैट वी हैव टू स्टडी. द मेन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इज द वी हैव टू स्टडी अबाउट द सोर्स फ्रॉम वेयर द स्टोन विल बी ओरिजिनेटिंग. एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग द स्टोन, सॉरी, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ द स्टोन, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ द स्टोन, वी हैव टू बेसिकली डायरेक्टली तो हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं. सो वी हैव टू यूज दैट स्टोन आफ्टर द प्रॉपर ड्रेसिंग ऑफ द स्टोन, आफ्टर प्रॉपर ड्रेसिंग ऑफ द स्टोन. तो आपने ड्रेसिंग कर दी. स्टोन की टेस्टिंग कैसे होती है और क्या स्टोन मैसनरी करवाई जाएगी, कैसे स्टोन मैसनरी करवाई जाएंगी, क्वेरिंग ऑफ स्टोन, क्वेंचिंग ऑफ स्टोन, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स, different tests on the stones, है ना, different kinds of the rocks we will study in this chapter only, the stone and the stone masonry. इन सभी चैप्टर्स में से if I am talking about the important topics, important chapters, from these all the chapters, all the syllabus content, the cement chapter will be very, very, very important from exam point of view. Aggregates are not so much important. After that
कंक्रीट इज इंपॉर्टेंट। तो दो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक सीमेंट है, एक कंक्रीट है। कई बार क्वेश्चंस आपके टिम्बर में से भी आते हैं, तो ये तीन चैप्टर्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, सीमेंट के ऊपर, कंक्रीट के ऊपर और टिम्बर के ऊपर। टिम्बर पे भी आ रहे हैं। अब आपने बेटा स्टोन्स पढ़ लिया, स्टोन मेसनरी पढ़ लिया, हम लोगों का एक मेन चैप्टर रह गया, दैट इज द स्टील। नाइन्थ चैप्टर विल बी स्टील। आप लोग अपने स्ट्रक्चर में सरिया यूज करेंगे, रीइंफोर्समेंट यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो जो रीइंफोर्समेंट होगी वो भी स्टील है। और आप लोग अपने स्ट्रक्चर में हो सकता है कि एमएस एंगल भी यूज करें, एमएस ट्यूब यूज करें, स्क्वायर हॉलो सेक्शन यूज करें, रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन यूज करें, स्क्वायर सेक्शन, सर्कुलर ट्यूब्स यूज करें, बाकी सेक्शंस भी आप यूज कर सकते हैं। दैट स्टील इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल स्टील। रोलिंग मार्जिन क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टेस्ट्स ऑन द रीइंफोर्समेंट और डिफरेंट टेस्टिंग ऑफ द रीइंफोर्समेंट बेसिकली डन इन द थर्ड पार्टी लैब्स, NABL approved labs, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर द लैब्स। NABL approved labs से बेसिकली टेस्टिंग करवाई जाती है। बाकी रोलिंग मार्जिन है, फास्फेट अटैक्स है, क्या रोलिंग मार्जिन की परसेंटेज रहनी चाहिए, तो ये हम लोगों को डिस्कस करना है जी स्टील में। तो यहां पर जो हमारा स्टील रहेगा दो प्रकार का, रीइंफोर्समेंट स्टील एंड स्ट्रक्चरल स्टील। रीइंफोर्समेंट स्टील एंड स्ट्रक्चरल स्टील, दो प्रकार के स्टील वी हैव टू डिस्कस। तो उनकी टेस्टिंग कैसे, कैलकुलेशंस होंगी, कैसे सेल्फ वेट ऑफ द, और बेसिकली हाउ द सेल्फ वेट ऑफ ए रीइंफोर्समेंट इज बीइंग कैलकुलेटेड पर मीटर, उसके बेसिक फार्मूलाज डिस्कस किए जाएंगे। जो बाइंडिंग वायर होगी उस बाइंडिंग वायर का डाया कितना रहेगा, उस बाइंडिंग वायर को कितने गेज की रहेगी, बाइंडिंग वायर का अमाउंट 1 मीट्रिक टन स्टील के लिए कितना लगेगा, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द स्टील चैप्टर। ओके, नाइन्थ चैप्टर हमारा हो गया स्टील, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 10th चैप्टर हमने भैया सरिया भी डिस्कस कर लिया, हमने स्ट्रक्चरल स्टील भी डिस्कस कर लिया। अब हमारा नंबर आ गया दरवाजे चढ़ने का, वुडन वर्क का, आर्कीट्रेव बनाना, वार्डरोब्स बनाना, मॉड्यूलर फिटिंग्स करवाना, दरवाजे खिड़की बनवाना, डोर विंडोज बनवाना, सही है ना? तो उसके लिए आपको पहले लकड़ी की टेस्टिंग करवानी पड़ेगी कि सेकंड क्लास टीक वुड है, शीशम है, सांगवान है, समझ रहे ना, या फिर नॉर्मल प्लाई बोर्ड्स हैं। प्लाई बोर्ड्स में आपका मान लीजिए जैसे कि आजकल चले हुए हैं HDMR, हाई डेंसिटी मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाई बोर्ड्स। तो ये सारी चीजें वी विल डिस्कस इन द चैप्टर टिम्बर। 10th chapter is also very very important. 10th chapter is also very important. यहां पर हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्री पढ़ेंगे। पिथ क्या होती है, मेडुलरी रेज क्या होती हैं, एटसेट्रा। कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल एज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री पढ़ेंगे। कहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लकड़ी को
और ट्री का कौन सा भाग वो होता है जहां से हम लोग यूजेबल लकड़ी को निकाल सकते हैं, ये डिस्कस करना है। सीजनिंग ऑफ द टिम्बर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अटैक हो जाता है, फंगस अटैक, या फिर वो फूल जाते हैं। तो सीजनिंग ऑफ द टिम्बर हाउ इज बीइंग डन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्रियोसोट ऑयल हमें लोगों को यूज करना पड़ता है इन जनरल। द सोलिग्नम पेंट्स एंड द क्रियोसोट ऑयल is being used for the seasoning of the timbers, for the seasoning of the timbers. How the CSI, the hardness index, is being calculated for the timbers, that is also important. टिम्बर के अंदर डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। different defects in the timbers we will study in the chapter number 10, that is the timbers. Along with this, how the defects can be minimized, how the defects can be minimized, this is also very very important. This is also very very important. उसके बाद हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्रियल टिम्बर्स, लाइकवाइज द वीनीर, लाइकवाइज द प्लाई बोर्ड, लाइकवाइज द फाइबर बोर्ड एटसेट्रा, हम लोग डिस्कस करेंगे। एक टिम्बर और भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज द कंप्रेग टिम्बर। कंप्रेग टिम्बर, तो हम लोग कंप्रेग टिम्बर को भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली दो प्रकार के टिम्बर्स होते हैं जो मैंने एक्स्ट्रा टिम्बर्स आपको बताए। वन इज कॉल्ड एज द कंप्रेग टिम्बर एंड वन इज कॉल्ड एज द इंप्रेग टिम्बर। कंप्रेग एंड द इंप्रेग टिम्बर्स। तो कंप्रेग टिम्बर्स एंड द इंप्रेग टिम्बर्स वी हैव टू डिस्कस। वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्रेग एंड द इंप्रेग टिम्बर्स। ओके, ये सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जनरली नेक्स्ट चैप्टर, 11th चैप्टर। दिस 11th चैप्टर विल बी द मिससेलेनियस। एक बात और याद रखेंगे, मैंने आपको बताया कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का बेसिक्स, लाइकवाइज द हॉट रोल्ड प्रोसेस, द कोल्ड रोलिंग प्रोसेस, ये हम लोग सबसे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। हाउएवर मैं ट्राई करूंगा कि जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बेसिक्स हैं वो हम लोग साथ में ही कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल इज द कोल्ड रोलिंग प्रोसेस, हॉट रोलिंग प्रोसेस, क्लॉथ कंक्रीट क्या होता है, फाइबर कंक्रीट क्या होता है, एटसेट्रा, है ना। मिससेलेनियस के अंदर वी विल स्टडी अबाउट द प्लास्टिक, द ग्लास, द पेंट एटसेट्रा। पेंट का कंजम्पशन कितना होता है, पेंट के अंदर व्हीकल क्या होता है, एक वर्ड यूज होता है व्हीकल, व्हीकल क्या होगा, टारपेंटाइन ऑयल क्या काम करेगा, है ना, डेंसिटी कितनी रहनी चाहिए, कंजम्पशन कितनी आनी चाहिए, कवरेज कितना आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कवरेज कितना आना चाहिए। 1 लीटर पेंट में आपका कितना एरिया, कितना मीटर स्क्वायर एरिया कवर हो जाएगा अगर सिंगल कोट लगाएंगे तो, अगर डबल कोट लगाएंगे तो। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेंट is also very important. Process of manufacturing of the paint is also very important. Okay, so beta, in the case of the miscellaneous, we will study about the plastic, different types of the plastics,
कौन कौन से प्लास्टिक्स आर बीइंग यूज्ड, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों को पेंट, प्लेन ग्लास, टफन्ड ग्लास, टफन्ड ग्लास की मेजरमेंट कैसे होगी, सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है। प्लास्टिक, पेंट, ग्लास एटेक्स्ट्रा, ये सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है इन द मिससेलेनियस चैप्टर। सो बेटा, हम लोग अपना जो सब्जेक्ट है, जो सीमेंट के आर्टिकल्स हैं, सीमेंट से स्टार्ट करेंगे, वो तो कल से करेंगे, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अगर मैं यहां पर ब्रीफिंग करूं तो हमने डिस्कस किया अबाउट द वेटेज, अबाउट द डिफरेंट रेफरेंसेस, अबाउट द सिलेबस कंटेंट। सिलेबस कंटेंट में मान लीजिए मैंने डीएलसी बोला था, तो डीएलसी बेसिकली अगर मैं एक रोड का क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज ना डाउटफुल में नहीं रहनी चाहिए। लेट अस सपोज दैट दिस इज आवर सॉइल सबग्रेड, ये क्रॉस सेक्शन है ऑफ ए rigid pavement. This is the cross section of a rigid pavement. सबसे नीचे आपका ये जीएसबी लेयर रहेगा, सब बेस लेयर रहेगा, जीएसबी, ग्रेनुलर सब बेस। जीएसबी स्टैंड्स फॉर द ग्रेनुलर सब बेस। अब इसके ऊपर हमारा डीएलसी रहेगा, दैट इज द ड्राई लीन कंक्रीट। दिस इज द डीएलसी, दैट इज द ड्राई लीन कंक्रीट। प्लीज बी केयरफुल, ड्राई लीन कंक्रीट का जो स्लंप होता है वो 0 होता है। स्लंप जो होता है वो 0 रहता है। आफ्टर दैट इन दोनों के बीच में, इस लेयर के और इस लेयर के बीच में, ऊपर वाली लेयर के बीच में जो मैंने ग्रीन कलर बनाया है, दिस इज ए बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी permeable membrane in the form of a polythene, approximately 125 micron thick polythene, 125 micron thick polythene is there. After that your rigid pavement is there, PQC, the pavement quality concrete. This is the, you can say, द कैरिज वे, जो आपका रोड का जो कैरिज वे है वो ये है। दिस इज द PQC, जनरली M30 M40 की रेंज में ये आपका रहता है द पेवमेंट क्वालिटी कंट्रोल कंक्रीट, पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट। द पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट। एक आपकी आईपीएस फ्लोरिंग होती है जी, है ना, इंडियन पेटेंट स्टोन फ्लोरिंग, द आईपीएस फ्लोरिंग। द इंडियन पेटेंट स्टोन फ्लोरिंग,
IPS फ्लोरिंग इज द इंडियन पेटेंट स्टोन फ्लोरिंग। अब अगर मैं बात करूं, एक फ्लोरिंग होती है दैट इज कॉल्ड द VDF फ्लोरिंग, वैक्यूम डीवाटर्ड फ्लोरिंग, वैक्यूम डीवाटर्ड फ्लोरिंग, कई बार इसको ट्रीमिक्स फ्लोरिंग भी बोल देते हैं, ट्रीमिक्स और VDF फ्लोरिंग, है ना। जनरली वाटर सीमेंट रेशियो VDF फ्लोरिंग के लिए अप्रोक्सीमेटली 0.35 रहता है। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, वन बाई वन अपन डिस्कस करते जाएंगे, ऐसे तो पता नहीं किस किस चीज की फुल फॉर्म अपन निकलते जाएंगे, है ना। गेटिंग माय पॉइंट नोट। सो आप लोगों को चीजें रिसर्च नहीं करना है, यू हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन, है ना। द मेन, योर मेन फोकस शुड बी ऑन द क्रैकिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, नॉट डूइंग द रिसर्च, R&D नहीं करना है ना। जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ते रहो, धोखा नहीं किया जाएगा। एवरी कॉन्सेप्ट विल बी गिवन टू यू, इट्स माई गारंटी टू यू, इट्स माई एश्योरेंस टू यू पीपल। एवरी कॉन्सेप्ट आई विल गिव टू यू, even those concepts which are not being taught in every coaching, I will teach you every concept, okay, related to the theoretical concept as well as the on the basis of the site based knowledge, है ना। after completion of this subject you will feel हम लोगों को फील्ड में काम करने के लिए, हम लोगों को जितना सब्जेक्ट पढ़ाया गया है फील्ड में काम करते हुए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट्स माई गारंटी टू यू, इट्स माई एश्योरेंस टू यू पीपल, ओके। सो इफ वी विल टॉक अबाउट द, वी विल ब्रीफिंग अबाउट द सिलेबस कंटेंट, दिस वाज द सिलेबस कंटेंट, हाउ द कंक्रीट इज बीइंग मेड, every concept was given to you. So from the tomorrow or from the next class onwards, we will study, we will teach you people, or we will start the first chapter that is called as the, you can say, the cement, that is called as cement. Cement के बारे में डिस्कस करेंगे, different properties. From the tomorrow onwards we will start the cement. Thank you so much, goodbye and keep learning with career will. Thank you, have a nice day.